Hello everyone, welcome to another new episode. This is episode 13, and this episode is very interesting because we have a very amazing designer and a person who I have been admiring for so long. And we have Anant Ahuja today, founder of Irregular Science. And Anant, for those who don't know you, would you like to tell us about yourself? I'm Anant Ahuja, as you categorically mentioned, Vaibhav. Thank you for having me here. First of all, I am a graphic designer by trade and profession. But over the years, I've also become an entrepreneur. I have become more of an entrepreneur and less of a graphic designer, and I run this company called the Regulars Alliance. Under the Alliance, we have a studio, then we have a cultural production wing, we have a publication, we do an art fair, we do as many things as a graphic designer can to make themselves visible. uh, तो काफी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है, बट मजा आता है करने में. That's the whole point of That's, doing what we're doing. Didn't realize it will become what it has become, but it has been fun. That's all I can say. how long has it been? How long has it been? I think अभी 8 साल होने वाले हैं. It's been 8 years. And how long has it been for you in the industry, like you being a graphic designer? I think 14 years now. So we got a veteran here, guys. वेटरन So, नहीं हूँ यार, अभी तो मैं जवान हूँ. अरे क्या बात है। हम लोग क्या है फिर? हम लोग तो टॉडलर है फिर। अरे, अभी तुम नए जवान हो, मैं पुराना जवान हूँ. नए जमाने है। अरे क्या बात है, क्या बात है। चलिए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर थिंग? I honestly have no straight answer to this, and it's a very Okay. um, it's a question that I always struggle with because this wasn't my choice of profession in the first place. मैं कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट था. मैथ भी मेरे पापा ने मेरे को लड़के दिलवाई थी स्कूल के अंदर कि मैथ नहीं पढ़ेगा तो लड़का करेगा क्या. बट फेल होता था काफ़ी ज़्यादा मैथ में. बड़ी मुश्किल से पास हुआ था. फिर उसके बाद घर वालों ने ये सोचा, ये पढ़ने लिखने में तो ध्यान लगता नहीं है इसका, कॉपी के पीछे ड्राइंग अच्छी बना लेता है, तो इसको कुछ ऐसा करवाते हैं जो थोड़ा क्रिएटिव हो. They put me to task, and I did some research and my dad also did some research. तो उन्होंने, पैसे ज़्यादा थे नहीं, कोई ऐसी जगह भेजे जो बहुत सस्ती हो और जो पॉकेट को पिंच ना करे और बाहर भी निकल जाए लड़का पढ़ने के लिए, थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए. तो उन्होंने मेरे को न्यूजीलैंड भेजने का सोचा. थोड़ी मेहनत मैंने भी करी, and then I went to New Zealand to study graphic design in this very small town called Wanganui, which is south of North Island. New Zealand is two islands, North Island and South Island. This is the south of North Island. It's a very small town, 40,000 population. उसमें से चार इंडियन फैमिलीज थी 40,000 में से, और क्या बात है। दो इंडियंस थे पूरे कॉलेज के अंदर. एक मैं था और एक बॉम्बे से लड़का था, अमन. It was fun, man. I think it was purely an accident. मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ. I just happened to fall in love with design while I was there. First year was a little tricky and hard. First of all, cultural shock, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. 18 साल का था, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट बट उसके बाद फिर मैंने रियलाइज कर लिया कि यही है, देख नहीं जाएगी, कर लेंगे. तो फिर कर लिया. क्या बात। That's how it all started. There was no, ऐसा नहीं था कि मैं हम्म। बहुत ही बढ़िया था डिजाइन में और मेरा पैशन था कि यही पढ़ना है, ऐसे ही करना है, इसके बाद करियर बनाना है. बस हो गया. It was an accident and made the best of that accident. That's how I think of it. ओके कूल। एक चीज है कि लाइक उस टाइम पे like, कब की बात है ये? व्हाट वुड बी द ईयर ये फॉर दिस? 2008 की बात है यार. यार की बात है। 2007 2008. हम्म. अब उस टाइम को लेके और अभी के टाइम में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? 17-18 साल के लोग अभी बहुत कैसे? डिफरेंस है. बहुत डिफरेंस है, मतलब मेरे आउटलुक में कि इंडस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस है. दो चीज में, एक आपके आउटलुक में पर्सनली, दूसरा चीज डिजाइन के आउटलुक में, खास करके ग्राफिक डिजाइन में। आई थिंक मेरे आउटलुक में तो यार एक उम्र के बाद एक ठहराव आ जाता है, जैसे कहते हैं ना. पहले पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सबको गलत प्रूव करना है, बहुत बढ़िया काम करना है, तोड़ देना है सब कुछ.
then after a point you're like, ठीक है यार, कर लिया जो करना था. Now it's important to maintain your sanity, maintain your dignity, maintain some kind of level-headedness, and also in any kind of exercise there's a thing called steady state cardio. If you want to do it for longer, you do it with a steady pace Agree. and not overdo it, overexert yourself or underperform in any way. That's the idea now. जो करना था कर लिया, जो उखाड़ना था उखाड़ लिया. अभी लॉन्ग टर्म करना है अगर ये, तो आराम आराम से करेंगे. कोई जल्दी नहीं है किसी भी तरह की. That's Patience is the the key. change in the outlook. Patience is a big virtue, man. Like I remember when I started out, I wanted to do so many things. I wanted to like break the roof, be the best at everything, and then slowly with time I realized that ठीक है, ambition अच्छा है, थोड़ा drive भी अच्छा है, but ज्यादा काम करके कुछ मिलता भी नहीं है. So I think that ज्यादा that's काम been करके a और काम great. मिलता है, क्या लगता है? हाँ, एग्जैक्टली यार, ज्यादा काम कर लो ना फिर समझ में नहीं आता है यार, इतना काम क्यों कर लिया, और काम करना पड़ेगा. वो चीज तो है. um, that has been a great change in my outlook. Now I do care about work, I do care about my profession, I do care about showing up consistently, but at the same time I like my breaks, I like my time off, I like. यार अगर मेहनत कर रहे हो और सक्सेस चाहते हो लाइफ में, सक्सेस सिर्फ काम करना नहीं होता, सक्सेस टाइम ऑफ भी होता है कि आप अपने आप को कितना टाइम दे सकते हो, अपने आप को कितना खुश रख सकते हो, अपने अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए और अपनों के लिए किस लिए मेहनत कर रहे हो. There's एग्जैक्टली, मेहनत for a एग्जैक्टली. reason, right? And that's been the biggest change in my outlook. Um, Second part of the question is what has changed in the profession in general. बहुत चेंज हो गया यार अब, मतलब इट हैज बिकम अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन. पीपल अंडरस्टैंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन. जब मैं पढ़ के आया था और मैं लोगों को बोलता था मैं डिजाइन पढ़ के आया हूँ, मेरे से सबसे पहला सवाल पूछते थे फैशन डिजाइन. Because fashion design has been the only design in India that has hit the mainstream or people publicly know of as a viable profession maybe. उनको पता नहीं था कि ग्राफिक डिजाइन में कुछ होता है. और जब मैं बोलता था कि मैं टाइपोग्राफी पढ़ के आया हूँ, तो फिर और लोग, क्या वो क्या होता है. So things have changed, man. Like when I started out, I wanted to just make logos. I wanted to typeset really beautiful fonts and create just word marks and do posters and all. करता था वो तब मैं, तब लोगों को समझ में नहीं आता था कर क्या रहा है. But now all those things have changed. Now everybody is a bloody creative director the moment they graduate from college. So I think बहुत चेंज आ चुका है, लोगों को बहुत पता चल चुका है इस प्रोफेशन के बारे में. ओवर एक्सप्लॉइट भी हो चुका है, ओवर यूज भी हो चुका है, बास्टर्डाइज भी हो चुकी है टर्म. बट सही है, आई थिंक टाइम हैज कम. इसी बात पे लाइक काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. अगर लाइक पता नहीं उस टाइम पे हमें तो डिजाइन के बारे में कितना 2-3 साल पहले, 4 साल पहले पता चला जब हम इंजीनियरिंग करने चले गए. डिग्री ले ली, हम क्या अच्छा चलो कुछ होता है डिजाइन नाम की चीज भी. कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन आजमगढ़ से, तो दिस इज इंटरेस्टिंग दैट यू गॉट टू नो अबाउट दिस वेरी अर्ली एंड नाउ यू डिड इट वेरी वेल. जैसे आपने बोला कि थैंक यू. एक टाइम पे आके सबको पता चल जाता है ये चीजें. अभी के हिसाब से लाइक दिस होल टॉपिक, द होल पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड इज हाउ मिसअंडरस्टूड ग्राफिक डिजाइन इज इन इंडिया. पता चल गया लोगों को कि चलो क्या होता है ग्राफिक डिजाइन, बट अभी भी क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है, फिर क्या चल रहा है? क्या समस्याएं यार हैं? पता है क्या है, हमारी जो मार्केट है ना, इंडिया जो मार्केट है, इट्स अ वेरी it's an emerging market. That's what the global term for India is, right? It's an emerging market. And why is it an emerging market? एक Maslow's hierarchical pyramid सुना है आपने? Needs, hierarchical needs का एक pyramid होता है, ठीक है? उसमें सबसे पहले बेसिक्स आते हैं, एसेंशियल्स आते हैं कि खाना पीना रहना सहना. और उसके टॉप पे जब आप सब कुछ बेसिक्स कवर हो जाते हैं ना, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है और क्रिएटिविटी आती है और ओके. आर्ट आती है. टॉप पे आती है वो एकदम. अब हम एज अ कंट्री वी आर स्ट्रगलिंग विद द बेसिक्स, राइट? हमारे बेसिक्स ही कवर्ड नहीं है. तो फॉर अस टू रीच द पिनिकल, द टॉप ऑफ दैट pyramid, और हैव you know our creative professions valued at the same level as rest of the evolved markets,
it's going to take some time, but things are changing. As I said, in the last decade or so, things have changed so much um, that it's the landscape has changed definitely. But abhi bhi, because of the basic needs and basics not being covered, अभी भी लोगों को लगता है लोग बैनर बना रहे हैं अभी। मैं मेरे घर पे परसों कोई गेस्ट, मेरी मॉम के घर पे मैं था, डिनर के लिए गया था। An uncle and an auntie had come over just to say hello. And this uncle I hadn't met in a very long time. So he's like, "So, beta, what are you doing?" And I said, "I'm a graphic designer." So, up to Canva, maybe everybody is designing and all. So, how is that coming along? So I'm like, I don't do Canva design, but Canva is definitely a great resource and a great tool for small businesses for them to scale and design for the ecosystems that they prevail in, these kind of businesses. What we do is more strategic design, where we build briefs, we putting thoughts into how this brand is going to look and feel like, and then get to the identity, and then design for different formats, and then probably design things in Canva also so that they can actually, bigger businesses are also using Canva now to templatize things. This is not an ad for Canva. But this is the level of information that people have still for design. They still don't understand the technicality of work, and the idea of underpayment or undervaluation of design also stems from this only, because nobody has an idea of what design can do for them. Uh, and design is not just visual stuff. Design is so much more. Design is design thinking, designing systems, designing businesses. You can literally apply design thinking to anything, vertical, horizontal stack, any kind of stack, and make your life easy. आप calendar use करते हो, that is you designing your life every day, right? कि मैं 1 घंटा इस पे spend करूँगा, 15 मिनट इस पे spend करूँगा, 20 मिनट इस पे spend करूँगा. Keeping a diary is also design. So design is an integral part of our lives. It's just that the term has been bastardized so much and used so in many weird ways and manners that it's just not perceived in a way that it should be. And एक ये भी प्रॉब्लम है हमारे प्रोफेशन की, हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम किसी की जान तो बचा नहीं रहे हैं अपने काम से, तो अपने को भी थोड़ा सा चिल करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। बट हाँ, एज फार एज डिजाइन एजुकेशन इज कंसर्न, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, पीपल आर गेटिंग बेटर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन और व्हाट इट कैन डू फॉर यू। मैं अपनी करियर ट्रैजेक्टरी में ही देख सकता हूँ कि जब मैं पहले यही चीज सेम चीजें सजेस्ट करता था, लोग बोलते थे क्या है ये, क्यों कर रहे हो। अब लोग मांगने के लिए आते हैं कि प्लीज हमें बता दो कैसे करना है, क्यों करना है। तो थिंग्स आर ये चेंजिंग, तो बट वो होता है। एवोल्यूशन टाइम लगता है। बट हाँ, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। इट्स स्टिल वेरी मिसअंडरस्टूड यार। मतलब लोगों को पता नहीं है कि हम करते क्या हैं, क्यों करते हैं, कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होती है, हम क्यों काम कर रहे हैं किसी चीज पे, कितना टाइम जाता है किसी चीज को खत्म करने में। और उनको लगता है कि उन्होंने ब्रीफ दे दिया और हम we'll just fucking have a magic wand in our hand and pull shit out of our ass and give it to hand it to them. ये लो बना दिया हमने। बात सही है। But सही है, I think वो चलता रहेगा यार। You will find all kinds of people, all kinds of clients, and after a point you realize that this is not your clientele only. You need to move away from this and focus on what you really can fix. There are things that you can't control. There are things that you can. You might as well focus on the things that you can, rather than thinking about things that you can't. दुनिया डिजाइन और एक अकेला बंदा नहीं बदल सकता. It has to be a collective effort. And also, sorry, one more thing. We talk about industry. इंडिया में डिजाइन इंडस्ट्री नहीं है. कोई वो फॉर्मेट ही नहीं है जिसके ऊपर आप फॉल बैक कर सको. कोई सेट स्टैंडर्ड्स ही नहीं है. जो चीज मैं अगर 20 रुपए में करूंगा, कोई आके 2 रुपए में करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर वो दूसरा बंदा भी सोचेगा मैं 2 रुपए में करवाता हूँ यार, मुझे 20 रुपए खर्चने की क्या जरूरत है. वो ये नहीं सोच रहे कि 20 रुपए ये उनको चीज तो हमेशा रहेगी। अगले प्रॉब्ली 10 साल तक और 20 रुपए नहीं खर्चने पड़ेंगे. यहाँ पे अभी वो 2 रुपए का करवाएंगे तो उनको प्रॉब्ली 50 बार 2 रुपए और खर्चने पड़ेंगे अगले 5 साल के अंदर. हाँ, But again, ये that's a चीज है। matter of evolution, right? Once people evolve, businesses evolve, basics are covered, things will get better. Yeah, definitely, but still, like, it's been a while since this is in India.
और जैसे कि यू पॉइंटेड आउट कि लोगों हम्म को 20 और 2 का डिफरेंस पता नहीं होता है। डू यू थिंक कि हम्म इट इज़ हार्ड टू सेल फॉर समवन जिसको नहीं पता कि ये उसके बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा करेगा, देन कंपेयर टू समवन उसको पता है वो चीज़? और बट यार बहुत हाउ लोगों हैज़ को बीन योर अब एक्सपीरियंस ऑन एट अ दिस? लार्ज स्केल भी नहीं पता होता, उनको बताना पड़ता है। A lot ओके। of our work is not just the work that we do, but a lot of varsity that we have to create around the subject of what we do. ओके। It's very easy to do this conversation and diss people and uh, tell people off कि तुम्हें नहीं पता डिजाइन क्या कर सकता है, बट अगर तुम खुद ही नहीं बताओगे उनको डिजाइन तुम्हारे लिए क्या कर सकता है और डिजाइन की क्या महत्वपूर्णता है तुम्हारे प्रोसेसेस के अंदर, तो फिर वो भी क्यों सोचेंगे उसके बारे में। वी स्टिल आई वर्क विद अ लॉट ऑफ CXOs like top bosses of big corporates and big startups, and sometimes I have to sit them down and be like, guys, listen to me, बिकॉज उनके दिमाग में भी एक आइडिया है ना, उन्होंने भी कुछ करा है तभी तो उनका धंधा इतना बड़ा बना है, बट देर इज समथिंग मिस इन दोज प्रोसेसेस, दैट्स व्हाई वी गेट इन्वॉल्व्ड एंड दैट्स वेयर वी हैव टू कम इन एंड वर्क विद देम एंड नॉट जस्ट बी लाइक तुम मेरी सुन लो तो सब सही हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि धंधा तो उन्होंने ही बनाया है, बिजनेस तो उन्होंने ही शुरू करा है। तो हमें उनका स्ट्रक्चर, उनके प्रोटोकॉल समझना भी बहुत जरूरी है, उनका माइंडसेट समझना जरूरी है। एंड डिजाइन हाफ द टाइम इज अ साइकोलॉजिकल प्ले where you try and grasp what the other person is thinking, mold it the way they can accept the things that you want to give them. Because आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर हैंडल बेटर है, उनका उनके सब्जेक्ट के ऊपर हैंडल बेटर है, बट देर इज ऑलवेज अ वे ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड what you are trying to convey. And that's what gets missed. Most of the designers nowadays, I've realized, um, they want to be artists. They want to be known for their style and what they bring to the table, and not really understand the business as much. कि क्यों कर रहे हो ये in the first place? And when that gets unanswered or that's left unanswered in that transaction, right, there is always bound to be issues later on. तो there is a ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, जिसे कहते हैं ना। uh, अगर आपको ये लग रहा है ये गैप है मार्केट के अंदर, ये लोगों को नहीं समझ में आता डिजाइन क्या कर सकता है उनके लिए, तो ये आपकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एथिकल प्रोफेशनल इन दिस डोमेन कि आप बताओ दुनिया को कि डिजाइन कर क्या सकता है। और ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ पता है मैं बताऊंगा, बट क्वेश्चन क्या है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस बिजनेस को क्या जरूरत है। अब कोई मेरे पास बिजनेस आएगा कि मुझे रिब्रांड करना है, मैं सबसे पहला सवाल नहीं बोलता कि मैं आपका नया लोगो बनाऊंगा। लोगो तो ऑब्वियसली मेरे को लोगो बनाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे को तो मजा आता है वो बनाने में, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको रीब्रांड क्यों चाहिए भाई, क्या हुआ है, कोई PR फियास्को है, कोई एक यू हिट सम पॉइंट वेयर यू नीड टू चेंज थिंग्स अराउंड टू शेक थिंग्स अप, ऑल ऑफ दैट। एंड until unless that is understood by you as a professional, you cannot really answer these questions for the brand or the business that you're working with. So it's very important to keep all of this in mind before you jump the gun and make a new logo. या दैट मेक कंप्लीटली सेंस। और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आपने बोली कि जो अगर तुम खुद अपना बिजनेस समझा नहीं पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही दिक्कत हो। ताली एक हाथ से Hmm. नहीं बजती, सही, बहुत अच्छी बात है। इफ यू वांट टू टेक एग्जांपल ऑफ वन ऑफ योर प्रोजेक्ट, लाइक आपने स्पॉटिफाई का रिसेंटली कुछ काम किया था, राइट? हाँ, हाउ स्पॉटिफाई वाज के दैट लिए हमने एक्सपीरियंस? रैप वुड यू लाइक टू 91। टेल अस अबाउट इट? या। इट वाज एन इनसेन एक्सपीरियंस मैन। हमने 3 महीने उस प्रोजेक्ट पे काम करा था, और वो 3 महीने काफी इंटेंस थे, बिकॉज जब तुम एक लाइव इवेंट खड़ा करने जाते हो ना, वाट लग जाती है टू डू समथिंग फॉर दैट 8 hours of 5,000, 4,000, 5,000 people coming together in one place and enjoying the work that you've done. um, it's very rewarding in those 5 to 8 hours, but at the same time the 3 months of work that's gone into it for that build up is also taxing. It takes a toll, um, but maza bhi bahut aata hai. As I said, it is extremely rewarding. And we've been working with Spotify for a very long time. We've been working with them, I think,
3-4 साल हो गए स्पॉटिफाई के साथ काम करते हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं. Okay. दिस वाज particularly a brief that had come from Spotify India. And this is an event that they do, a recurring property that they have called Rap 91 Live, which is Rap 91 is their marquee playlist in India, which has all the rappers from all around the country that they publish the music for and from. And this is like a showcase of rappers from all around the country. And it's a free event, so you have to sign up. And if you get in, you get in. If you don't, you don't. And इसके लिए हमने सब कुछ करा था, from the stage design, the stage visuals, to the entryway. The experience of the venue was designed by us. And बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार, जब आपको मतलब ये भी सोचना है कि जब एक बंदा गेट से एंटर कर रहा है, वो वहां पे टिकट खरीदेगा, मतलब टिकट लेगा, अपना बैंड लेगा, और फिर वहां से ये लेफ्ट लेगा, और फिर वहां से राइट लेगा. वो लेफ्ट और राइट में उसको क्या दिखने वाला है, उसका एक्सपीरियंस कैसे एलिवेट कर सकते हो, उसको एक ऐसी क्या चीज दे सकते हो जहाँ पे वो फोटो ले और स्पॉटिफाई को टैग करे बाद में. बिकॉज हमारा काम ये है कि हमने स्पॉटिफाई की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है फॉर दिस पर्सन हुज कमिंग टू द इवेंट. And if we don't do the job well, and if they don't really interact with the stuff that's being built over there, then that brief is lost on us. So really understanding the nitty-gritties of what is experience design um, is a big thing. You cannot just be like, oh, मेरे को पता है क्या करना है. आपको एक 20-22 साल का लड़का या लड़की या जो भी वहाँ पे आ रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, because that's the core audience of most of these rap music events. उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको क्या पसंद है, वो रैप को कैसे परसीव करते हैं, वो हिप हॉप को कैसे देखते हैं, इंडिया में हिप हॉप सीन कहाँ से कहाँ पे आ चुका हुआ है, क्या एवोल्यूशन हुआ है हिप हॉप का और रैप का इंडिया के अंदर, फ्रॉम गली बॉय ऑल द वे टू व्हाट इट इज. If you see the whole grungy look and feel of what it was 5-6 years ago to highly polished content that's now coming out of hip hop, just the music videos also, पहले क्या लेवल होता था और अब क्या है, वो ट्रांसलेशन फ्रॉम देयर टू देयर इज ऑल्सो अ बिग आस्क, राइट, कि इसको इवॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी 3 साल हो चुका हुआ है, चौथे साल में ये कैसे आएगा. It was very hectic, it was taxing, and thankfully my team held the fort. मुझे याद है जो एनिमेशंस थी स्टेज के, बिकॉज द होल स्टेज वाज Love the जस्ट animations. स्क्रीन्स. Yeah. वो विजुअल्स लिटरली शो शुरू होने से आधे घंटे पहले तक हम चेंजेस और रेंडर कर रहे थे, कलर करेक्शन कर रहे थे. और मेरे को याद है लोगों ने, उन्होंने गेट्स खोल दिए थे, लोग एंटर कर रहे हैं, हम जो स्टेज के सामने जहाँ पे विजुअल जॉकी और साउंड इक्विपमेंट पड़ा होता है, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल एरिया होता है, हम उसके अंदर बैठ के मैं खड़ा हुआ हूँ कि कोई आगे इनको कुछ बोलेगा नहीं मेरी टीम को, बिकॉज एवरीबडी वाज लूजिंग देयर टेम्पर एंड पेशेंस, बिकॉज थिंग्स आर जस्ट Yeah. अबाउट टू स्टार्ट, राइट, एंड फर्स्ट परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी स्टार्टेड. उसके विजुअल्स थे स्क्रीन पे, बट अभी भी एक दो चीजें रेंडर हो रही थी क्योंकि उसमें करेक्शंस थे, वो भी चल रहा था. तो और 24 घंटे से कोई सोया नहीं. तो ऐसा हमेशा कोई भी लाइव इवेंट होता है, नॉट जस्ट दिस, वी हैव डन मेनी अदर इवेंट्स आल्सो. These kind of things when it comes to a live event, right? Because you don't know how it's going to look in, when it's on your screen, that's a controlled environment, right? It's on your screen, you know what's happening. The moment it's gone from your screen into another system, then it's getting relayed onto a bigger screen, and there are 5,000 people looking at it at the same time. What matters is that उन 5,000 लोगों को वो कैसा दिख रहा है, not what's happened on your screen before that. So it's mind-numbing. It's also mind-boggling. It's frustrating yet very very rewarding once it's done. Yeah. तो वो प्रोजेक्ट काफी हेक्टिक था, बट बहुत मजा आया वो खत्म करके. Like I can relate to this because I used to like do similar kind of thing in college. बहुत small scale पे. But कॉलेज में एक दो बार हमने वो यही डाउनलोड से टेम्पलेट उठा के आफ्टर इफेक्ट्स का और लोगो चेंज कर दिया कॉलेज का, और कॉलेज वाले भाई क्या बनाया है, क्या बात है. और वो मेरे जाने के बाद 3-4 साल उन्होंने यूज किया.
और वो जिस हाँ, जिस इवेंट में थे, लाइक हम लोग, लाइक पूरा क्राउड है और बीच में हम लोग, वो जहाँ पे आपने बताया हम्म, वीडियो जाकी, वहाँ बैठ के हम लोग पूरा हम्म, बना रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं। हम्म, कभी कभी लाइक हाँ, हाँ, एंट्री लेट हो रही है तो चलो गाना हम लोग बजा रहे हैं, तो मार्टिन गारिक्स का एनिमल्स लगा दिया। और लाइफ में पहली बार थोड़ा सा लगा, अरे भाई कुछ किया हमने क्राउड के लिए। हाँ, तो हाँ, बहुत अच्छा हाँ, लगा था वो चीज़। तो जब हमने देखा प्रोजेक्ट स्पॉटिफाई का, दैट 21, हम भी बहुत फैन है इसके, हाँ, डीएचएस के। और तो हाँ, 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 बहुत अच्छा लगा, लाइक जो मोशन था सब कुछ था, लाइक डैम ये सब भी हो सकता है इंडिया में। तो काफी अच्छा हाँ। था वो। हु इज थैंक योर यू यार। फेवरेट रैपर? मैं Who is my favorite rapper? यार, I have many यस favorite. सर, I don't have a particular favorite rapper. टॉप 5 बताइए चलिए। Uh, अभी अभी if I were to tell you honestly, अभी I'm hooked on to Dhanji. Like I'm जी, ओके listening to ओके। Dhanji on repeat. In the last uh, song that I was listening to was अच्छा। this one. What would the credit department think? हम्म, By Dhanji. ठीक है। This album is top class. Then ओके I listen to Real Boss quite a bit. Um, ओके ठीक है। he's a very he's not very out there, but Punjabi rapper. I listen to him quite a bit. हम्म, I like everybody यार, मतलब सबके साथ काम करा हुआ है, सबको देखा हुआ है, हाँ, to get onto a stage and their early struggles and days all the way to becoming superstars. So I have great respect for all the talent that exists out there in the hip hop scene, and I'm glad that it has come a long way. क्या अभी हम तो लाइक, ये तो चल रहा है, मतलब Hmm. क्या कहते हैं, Hmm. इंडियन हिप हॉप सीन और रैप सीन तो बढ़िया चल रहा है। उधर पाकिस्तानी हिप हॉप Hmm. सीन थोड़ा अच्छा है। तलहा अंजुम और इनका, हाँ, मेरा वो लाइक भी 1 साल से गलत लूप पे चल गेम रहा खेल रहे है। हैं। वो कहाँ? अलग ही अच्छा, चल कौन रहा है सा? उनका, लाइक तलहा अंजुम, तैमूर पे, ये पूरा जो इनका कैटेगरी है हाँ, इन लोग का, हाँ, हाँ, लाइक दिस इज नेक्स्ट लेवल। हाँ। और इंडिया में आई थिंक हसल के साउथ कुछ एशिया इन कंटेस्टेंट है जो उन्होंने जनरल अच्छा कर। हम्म, आई थिंक साउथ एशिया इन जनरल अभी जिस तरह का रैप आ रहा है ना, पीपल आर रियलाइजिंग दैट हम्म, it's not just commercial music that does well anymore. People understood the importance of rhyming, cadence, हम्म, doing hip hop in its true essence. And मैं मराठी, तमिल, बांग्ला रैप हम्म, इतना मतलब क्या लेवल पे आ चुके हैं, और प्रोडक्शन वैल्यू कितना सही है यार। हाँ एक टाइम पे इनको प्रोड्यूसर ठीक नहीं है। मिलते थे हाँ, गाने बनाने के लिए हाँ, इनके। आज की डेट में अभी देख रहे ऐसे तगड़े तगड़े हनुमान काइंड। प्रोड्यूसर हैं। Exactly. Hanuman Kind has been in the scene for so long, you don't even know. एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली। मतलब वो इतने टाइम से उसने इतनी मेहनत करी है, और वही होता है ना कि एक गाना, दो गाना, एक हिट होता है और हाँ, फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड वही वाला ही इज सीन हो गया कि फकिंग ओवरनाइट किल्ड इट। सक्सेस को एक डेकेड लग गया। Exactly. He's been fucking grinding it, man. And massive respect to him that he's put Indian hip hop on the global map altogether. ऐसा है, आके का काम था उन्होंने, उनके साथ में कोचेला, और आई थिंक इंडिया में भी किसी टूर पे हाँ, किया था। आकिब आकिब ने उसका लोगों क्या और कहते स्टेज हैं, डिजाइन किया था आई थिंक। बम्बे में कौन सा फेस्टिवल होता है? अभी लॉलापलूजा। रोला पोलो था क्या कुछ और? हाँ, उसके बाद फिर हाँ, सेम चीज आई थिंक लॉलापलूजा कोचेला के में भी लिए किया जो उन्होंने। स्टेज विजुअल्स थे, हाँ, that was taken हाँ, to Coachella also. Akib is also, हाँ, हाँ, one of the most fantastic people ग्रेट। that are out there. He's a very dear friend of mine also. ओके कूल। आई वांट हिम ऑन द पॉडकास्ट फॉर सो Hmm. लॉन्ग। दीपक से बात हुई थी, उन्होंने भी किया था, बोलो। दीपक रिकमेंडेड यू आल्सो। या, अच्छा, अच्छा। बुलाओ बुलाओ, आकिब दीपक को बुलाओ। दीपक साइकी। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आई वाज हम्म। ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम। आप एक बार हम्म। बोल दीजिएगा तो इट विल हेल्प। आई थिंक ठीक, बोल पहुंचा नहीं है अभी दूंगा। तक बात हमारी। uh, बोल चलिए दूंगा कूल। उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बिजी आदमी है यार वो बहुत। मैं वेला हूँ। हाँ वो तो है। वो तो देखा हमने, लाइक बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, लाइक एक अच्छा है, फिर एक उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे जा रहा है। तो अच्छा सुपरस्टार है। आदमी है आकिब। That is there. Coming back to one thing, like when I was हम्म। reaching out to you for this thing, I saw this thing in your bio, Forbes 30 under 30. कुछ बताना चाहेंगे फोर्ब्स हम्म। के बारे में? लाइक हाउ इज इट, लाइक आई हैव सीन, लाइक मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज पेड एंड ऑल। व्हाट इज द रियलिटी? हाउ हैज बीन इट फॉर यू?
यार honestly? मैंने तो नहीं करा था पे। Mhm. मैंने for the longest time I had been Mhm. recommended and I had been put down as a nominee for Forbes 30 Okay. under 30. Over Mhm. the years, since I was 23, 24, I got recommended for it. Many people became my referees and nominees also, but I never got it. And when I could have least expected it to have happened, at the age of Mhm. 28, I was about to turn 29 that year. मैं कहा अब क्या होगा यार, अब तो 30 होने वाले हैं, क्या होएगा? अभी कितने के? Um, अभी I'm 33, going to be Okay. 34 this year. Um, तो इस हुआ भी तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ. इट वाज एट द ऑनसेट ऑफ द Mhm. पैंडेमिक. मतलब मार्च Okay. में पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन लगा. 2020 की बात है ये. और अप्रैल फर्स्ट वीक में उन्होंने अनाउंस करा लिस्ट को. तो उस टाइम पे तो घर पे अकेले, कुछ करने को भी नहीं था, क्या ही करते. तो Mhm. 6 बियर पड़ी थी फ्रिज में, मुंह खोल के पी ली. सुबह सुबह 7 बजे. बहुत सही. But I don't know. There could be paid inserts also, man. I didn't pay for it. And most Okay. of the people How that has I know been got like it because experience I कैसा never रहा paid. like? हाँ, okay. Experience, yeah. Of course, you feel like you're on a high horse and things look fantastic, and you're like, "Fuck yes, I'm credible." All of a sudden, a major publication, global publication like Forbes has put me on a list of some kind of achievers, and I feel like I'm of a certain caliber and a breed. Uh, but then it also fizzles out with time. Then अब जैसे मैं कह रहा था ना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक केडेंस मेंटेन करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे लोग लिस्ट में आते हैं, उसके बाद वो फिजल आउट भी कर जाते हैं. List is just a one-time award and a one-time achievement. After that, it is also your credibility in the market that you need to maintain. It is your work that needs to be consistent. It is your practice that needs to be consistent. Uh, of course, it gives you some kind of a voice. People did take me seriously Exactly. after I got that tag, but Mhm. more seriousness developed into something more credible over a course of time. Now आई डोंट इवन केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद पता नहीं कितने अवार्ड जीते हैं, कितने Mhm. सर्टिफिकेट्स मिले हैं, क्या क्या नहीं मिला है. बट एक टाइम के बाद इट ऑल्सो बिकम्स लाइक अ सेकेंडरी थिंग. ये तो चलेगा यार, ये अच्छा काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करनी है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बाय प्रोडक्ट. देखो मेरे को एक चीज पता है, Mhm. Mhm. मेहनत करोगे तो उसका बाय प्रोडक्ट रिवॉर्ड है, और उसका बाय प्रोडक्ट पैसा है. ठीक है, मेहनत करते रहो, सब कुछ हो जाता है. Simple. That's it. तो मेहनत में कमी होगी, ये सोचते रहोगे कोई कुछ आके करेगा, कोई कुछ आके हाथ में पकड़ाएगा या देगा, वो नहीं होता है. मेहनत करनी पड़ती है, वो कोई तुम्हारे लिए आगे काम आसान नहीं करता है. और मेरे को यहाँ बैठ के ये बोलने में शर्म नहीं आती है कि मैंने पहले बहुत मेहनत Mhm. करी है. मैंने 12-12, 16-16, 17-17 घंटे भी काम करा है. अभी भी कभी कभार सेट पे होता हूँ तो करता हूँ, Mhm. ऐसा नहीं है कि नहीं करता. बट अब उतना करने का मन भी नहीं करता, और उतनी अब वो भी नहीं रह गई है, इच्छा भी नहीं रह गई है इतना काम करने की, कि इतना इतना लंबा दिन खींच दें. बट हाँ, 6-7 साल 8 साल बहुत घिसा मैंने. और then everything else is as I said, a byproduct of that. Because you build some kind of trust, you build some kind of credibility, and that's what people come to you for. It's not just the quality or the amount of work that you put out there. They need to have some sense of trust, right? If I'm trusting you with heaps of cash to do a job for me, Mhm. uh, quality of work is something that I'm taking for granted. That's why I'm choosing you in the first place. But then it's also the end result, the delivery of it on time, the responsibility that Mhm. comes with it. That also matters. और लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए आज की डेट में. वो एक पिटफॉल है. करो, मेहनत करो, ऑफ कोर्स जल्दी मिल जाए तो और भी बढ़िया है, बट अच्छी चीज, अच्छे रिजल्ट्स में टाइम लगता है, In the अच्छे end, the काम में whole भी टाइम topic, the लगता whole है. system, it would be like patience is the key.
एंड पेशेंस का मतलब क्या ये नहीं कि मैन, बैठे हुए हैं काम करके वेट कर रहे हैं. यू हैव टू कीप डूइंग इट. करते रहो यार। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी तो कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। एग्जैक्टली, And that एग्जैक्टली. is a very it might sound like cliched and stupid, and nobody should care about the result and all. But मेरी रियलाइजेशन यही रही है, जब मेरे को बहुत कुछ चाहिए था, जिस टाइम पे चाहिए था वो तब नहीं मिला। और तब ऐसा लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे कुछ, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो जैसे कहते हैं ना, एक टाइम के बाद स्विच होता है, चीजें फ्लिप होती हैं, एंड देन यू लाइक फक, आई हैड ऑल दिस व्हाइल, आई जस्ट डिडंट अप्रिशिएट इट। जो भी होता है वो कम लगता है। ओके, ओके. और फिर जब इतना मिलता है, देन यू लाइक, तब तुम ओवरवेलम हो जाते हो कि फक, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैंने रियलाइज ही नहीं कर। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे इसके बारे में? यार वही, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो 28-29 साल की उम्र, क्लोजर टू योर 30s, राइट? बिफोर दैट आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट्स, नॉट लाइक आई वाजंट डूइंग बिग वर्क, but that was like the turning point in my career, that 28 to 30 I did such big projects that I had never imagined I'd be able to do. And imagine being like the top boss on those projects. People who are probably twice my age at that time wouldn't have thought of working on those projects. And I'm not being ageist in any way, but people just sit around all their lives for opportunities to come their way. And this was happening to me at a point and at a time where I couldn't have imagined that this would have happened. Uh, मुझे याद है, Paytm had bought a large majority in Insider, the ticketing platform, and I got the opportunity to do the branding for them. Paytm Insider जब ब्रांड बना था, अभी इंसाइडर को जोमेटो ने खरीदा, उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया, वो फिर मेरे पास आए वो ही टू देखा, बिल्ड द अपने ही सिस्टम किया. फॉर इट। या. हाँ, तो हमारा काम तो मोस्टली बिहाइंड द सीन्स ही रहता है यार। हम जिस तरह का काम करते हैं, वी डू लॉट ऑफ सिस्टम डिजाइन, वी बिल्ड स्ट्रक्चर्स दैट पीपल कैन देन टेक फॉरवर्ड एंड बिल्ड ऑन। हम ढांचा बना के देते हैं ब्रांड का। एंड व्हेन सच बिग ब्रांड्स ट्रस्ट यू विद देयर वर्क, that means something, right? For it to have come your way at this point in your career. And that's what I mean, that patience is a big virtue. Like, from the age of 19 to 20, when I started freelancing, when I was still in college, all the way up till 28, which was a good 10 years, I was just like, कब आएगा मेरा big break, कब आएगा मेरा big break, कब आएगा मेरा big break? एंड अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अभी मेरे को मतलब जिस भी तरह का प्रोजेक्ट आता है, मेरे लिए सारे बड़े बिग ब्रेक है। Because now it's not the big break that I'm looking for. It's about the value add that I can give when somebody is trusting me with their business. अभी मतलब कोई मेरे पास क्लाइंट आएगा कि हम लोग, क्योंकि एक ये भी दिमाग में फैलेसी बैठ जाती है कि सिर्फ कूल काम करना है। काम कूल तभी होता है जब तुम उसको कूल बनाते हो। क्लाइंट कूल नहीं होता है, वो कोई भी ब्रीफ कूल नहीं होता है, कूल रिजल्ट होता है काम का। तो और वो तुम्हें प्रोसेस खुद ही कि बनाना इतने मन पड़ता से है। काम कर रहे हो. हाँ. एग्जैक्टली कितना उसमें ध्यान लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जब वो सब टिक मार्क हो जाएगा ना, सब चीजें, तब एंड रिजल्ट कूल बनता है। तो आई थिंक दिस इज द वेटिंग पीरियड। एंड कई लोगों के लिए वो बहुत जल्दी भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बैठ के वेट ही करनी पड़ती है, बट वही, एज आई सेड, देयर इज अ path that you need to be on for a while for it to actually for you to see the light at the end of the tunnel. And sometimes it takes a while, but all you have to do is just put your head down and keep working. Be consistent with your effort. एग्जैक्टली. लाइक. Don't lose hope that कि अब तो नहीं होगा। ओके, कूल. सो लाइक, इफ वी कमिंग बैक टू द टॉपिक, लाइक अगर ग्राफिक डिजाइन के बारे में बात किया जाए, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक अगर देखा जाए तो इन द एंड, इन अ नटशेल, इफ यू टॉक अबाउट टू गेट अबाउट यू कैन से बिग ब्रेक और बिग मनी, सेम चीज है. काम करो सर झुका के, रिजल्ट के बारे में मत सोचो. दैट इज द थिंग. दैट इज लाइक गोल्डन पीस ऑफ Yeah, एडवाइस दैट कैन अप्लाई टू एनी फील्ड फॉर एनी वन एट एनी स्टेज, यू yeah, कैन से. yeah, सो yeah, yeah.
One One thing I more would like thing to that I've understand, like, realized. Yeah, go please, on, go on. please, go ahead. No, no, sorry, your No, visual no, got gonna, stuck. That's why I thought you stopped with the oh, question. okay. I think there is Um, an internet connection issue from you, hmm, like, probably. No issues. probably. Yeah, yeah. Like I was asking, when you talk about Hmm. trust, like, you want to work with anyone who's like beyond their skill, like अगर काम अच्छा है ठीक है, but trust भी होना चाहिए, Hmm. reliable भी होना चाहिए. तो how has been your experience in India, like especially graphic designer के साथ? कि like are they trustworthy or had you had bad experience or something like that? Yaar, Is it a big problem in India? discipline is a big problem in India because होता क्या है यहाँ पे ना तुम काम बहुत अच्छा कर सकते हो बट सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है लोगों के डिसिप्लिन नहीं है टाइमलीनेस नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी शडर करना बहुत आसान है लोगों के लिए किसी को ब्रीफ दिया आई एम नॉट जनरलाइजिंग द मार्केट saying there are all kinds of people everywhere not just in वो India तो but हर जगह रहेंगे, हाँ. I've realized this over the course of time that a lot of people shy away from सबको बढ़िया काम करना है सबको मतलब वो they want the merit they want the reward but they don't want the actual responsibility that comes before the reward that helps you get there and sometimes that leaves a bitter taste in these kind of relationships but thankfully touchwood हमारा एक as an organization we have a golden rule that for us intent is more important than your work. If your intent is good, you really want to work hard, we are willing to work with you. And That that makes doesn't sense. come at the cost of exploitation either. That comes at the cost of reassurance that this might take some time for you. This might take some understanding for you to get to the level of work that we want to put out there. But at least you are willing to put in that kind of effort. Sometimes what happens is when you have all rock stars and superstars, nobody wants to do the work. They're all expecting things to happen for them. So we as an organization always gun for the underdogs. I have been an underdog all my life, so I go for the underdogs. Not anymore, I would say. I mean, अब तो यार जो है अब now it's a professional practice, right? अब फर्क नहीं It's पड़ता, not लाइक just कैसा me हो गया anymore. कैसे नहीं. हाँ अभी तो है जो है अभी आता रहेगा करते रहेंगे देखी जाएगी. It's more like that. अभी मजा आ रहा है काम में, दैट्स इट, राइट. हाँ अपने को यार काम करना है छुट्टी लेनी है काम करना है छुट्टी लेनी है ऐश करनी है लाइफ में और लॉन्ग टर्म करना है ऐसा कोई जल्दी नहीं है जल्दबाजी में कुछ नहीं करना. दैट इज कूल. एक्सप्लॉइट से बात याद आया कि हम्म. डू यू थिंक एजेंसीज और फिर कंपनीज और क्लाइंट्स इन इंडिया एक्सप्लॉइट डिजाइनर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स और फ्रीलांसर्स? नॉलेज ही नहीं है ना यार नॉलेज ही नहीं है ना वो तो अंडर वैल्यू करते ही हैं वो तो it's a very big conundrum it's a sad state of affairs over there and businesses के अंदर values ही हैं वो उनको बस धंधा करना है there is no principles there's no values there's no ethics and अगर ऐसी बेस फाउंडेशन ही ना हो किसी धंधे की कि हम क्यों कर रहे हैं किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं क्या वैल्यू ऐड हम उनकी लाइफ में कर रहे हैं क्या वैल्यू ऐड वो हमारे बिजनेस में कर रहे हैं तब तक ये चलता रहेगा एक्सप्लॉयटेशन और एक दो गिने चुने लोग नहीं चेंज कर सकते द होल कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर एंड डू दिस इज अ कम्युनिटी ड्रिवन डू यू एफर्ट. थिंक द कम्युनिटी इन इंडिया इज टुगेदर? ऐसा लगता है कि लाइक है कम्युनिटी? समटाइम्स इट फील्स यार लाइक पता डिस्टेंट, लाइक है हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी बना रहा है. वो ये सब साइलोज में तो काम कर ही रहे हैं सबको जब तुम कोई भी कम्युनिटी ड्रिवन चीज की बात करो ना होता क्या है सब साइलोज में चले जाते हैं और उनको फिर लगता है कि हम लीडर हैं हम रिंग मास्टर हैं अब हम डंडा घुमाएंगे और लोग करेंगे जो हम बोलेंगे फिर लोग डिस्करेज हो जाते हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए पहले शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है कि कम्युनिटी 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 फिर वो कम्युनिटी के नाम पे गेट कीपिंग बन जाती है um, फिर वो that doesn't do the job that it was supposed to do in the first place. But again, there is still many communities. I'm a part of
many such small clusters of people that are willing to do um, bring about change at an organizational level. We share resources with each other. We share contracts and legalities and modalities of businesses with each other. We become each other's sounding boards. We help each other out in need. That does exist, but that also comes with a certain level of heightened sensibilities. कि तुम मतलब एक लेवल पे आ चुके हो अपने दिमाग में. You become like a full grown person mentally. That's when you can actually, जब तक अपना घड़ा नहीं भरोगे किसी और का घड़ा कैसे भर सकते हो. तो पहले अपना घड़ा भरना ये भी है. जरूरी है एंड देन थिंक अबाउट कम्युनिटी बिकॉज उससे पहले सिर्फ तुम शायद बोल रहे हो कि तुम कम्युनिटी के लिए कर रहे हो बट तुम अपने लिए कर रहे हो. तुम अपना हाँ, स्वार्थ देख रहे हो उसके यही अंदर कि चीज, यही तुम उसके सवाल था अंदर एक मेरा. मास्टर कैसे बन सकते हो. हाँ. Yeah. Like in the end, everyone is there in Hmm. for their own profit, kind of indirectly, Yeah, maybe man. directly. Which is Uh, fine, dude. Everybody is trying to do something or the other for a reason. But ठीक है, I think जो भी थोड़ा बहुत होता है इधर उधर, make the best of it as much as you can. Uh, but there is a lot of discouragement regardless around community-driven projects because again, India ऐसे मैंने बताया evolved market नहीं है. लोग एक दूसरे का रेट तोड़ना चाहते हैं, लोग एक दूसरे का धंधा छीनना चाहते हैं. They are also jealous of each other's work. अब क्या कर सकते हैं? You can't change people's इसी पे mindsets and मेरा एक सवाल था. ideologies. Some Like the people next think a question certain way. and हम्म. हम्म. next हाँ, बोलो बोलो. question was on this कि like jealousy और इस बारे में धंधा छीनने के बारे में कि मान लीजिए अगर 4-5 एजेंसी हैं एक स्पेसिफिक लेवल पे और किसी को बड़ा हम्म. प्रोजेक्ट मिल गया तो व्हाट हैपेंस टू अदर हम्म. एजेंसी लाइक जेलसी होती है कि लाइक कंपटीशन होता है कैसा होता है इसकी लाइक इफ देयर इज अ बिग प्रोजेक्ट ऑन द लाइन. हाँ. हाँ. Yeah, it's a very personal thing. A healthy sense of competition is always important for uh, the community in general at large. अगर एक वो healthy sense of competition नहीं रहेगा और एक ही ऑर्गेनाइजेशन या गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही धंधा जाएगा सारा का सारा फिर वो healthy competition नहीं रहेगा. For any community or any business kind of business to evolve, there has to be a sense of healthy competition. Uh, that's one thing. Secondly, of course, jealousy नहीं होती है. That's again that idea of कि fuck यार ये हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ में. Or मोटिवेशन है घर से. if it gives you, yes, exactly. If it gives you that sense of, man, this work was fantastic. This job was well done. And if you feel proud for them, then you're like, I also want to do something like this or at par with this. And that's again that healthy sense of competition. It's not coming from jealousy or that irsha or that idea of fuck them, how can they do it? It's more like I would also want to do something like this, and that's great. I think that's it's important to have that. बाकी ऐसे चीज मैंने बोला हर तरह के बिजनेस में हर तरह की पर्सनैलिटी रहती है. किसी को जेलसी होगी, कोई सड़ेगा, कोई कुड़ेगा तुम्हारा काम देख के, बट तुम वो बदल थोड़ी ना सकते हो यार किसी को. वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. तुम बस अपना काम कर सकते हो और तुम अपना मन साफ रख सकते हो. अब मेरे दैट इतने इज देयर दोस्त या. हैं इंडस्ट्री के अंदर जो कि इतना बढ़िया काम करते हैं. अब मैं अगर रोने बैठ जाऊं कि यार ये ऐसा काम कैसे कर रहे हैं और मैं अपने काम की तरफ ध्यान ही ना दूं. और एक ये दिस इज अ वेरी कॉमन नोशन एंड आई ट्राई एंड टेल पीपल ऑल द टाइम द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द साइड दैट यू एक्चुअली वाटर इट ऑन, नॉट द अदर साइड. ओके, तुम उसकी तरफ ध्यान ये दो जो इंटरेस्टिंग तुम्हारे था, ये पास है पहली और बार सुने. उसको बढ़िया बनाओ rather than thinking कि किसी और के पास क्या है. किसी और के पास यार तुम कल एक जाके मर्सिडीज ले आओ, ठीक है, टॉप टॉप मॉडल, ठीक है. 3 साल बाद मैं किसी और की गाड़ी बोल ही नहीं रहा. वही जो तुम्हारी मर्सिडीज है 3 साल बाद एक नया मॉडल आ जाएगा उस मर्सिडीज का और वो फिर कोई और लेकर आएगा. फिर तुम्हें लगेगा नहीं यार इसकी मर्सिडीज मेरी मर्सिडीज से बेहतर है कि नहीं. वो तो एक दैट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल दैट यू विल हैव विद एनीथिंग दैट इज नॉट योर्स or not in your area of owning things, because everybody wants some level of power, some level of command in whichever field that they're in.
But it's important to focus on what you have rather than thinking about what other people have. Because if you make things that you have better, things will automatically work in your favor rather than thinking about what other people have working for them. Yeah. So keep your heads down and keep working. In the end, यही है. यही है यार फॉर्मूला यही है देयर इज नो अदर फॉर्मूला ऑफ कोर्स with Exactly. time you also become a little more polished you become a little हम्म. more you have a better handle over what you're doing हम्म. जैसे कहते हैं Okay. ना लाइफ किसी One को question like, इंसान बना देती है हाँ हाँ, वो भी चीज. इंसान तो बनना जरूरी है, लेकिन बहुत लोग हम देखे हैं काम के चक्कर में इंसानियत ही भूल जाते हैं कि नहीं, बस हमें पैसा चाहिए, काम चाहिए, बाकी हम अपना ईमान वान सब बेच देंगे. देखे हैं बहुत लोग ठीक ऐसे. है यार सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं कोई अभी क्या कर रहा अभी है क्यों आपने, कर रहा है हाँ, अभी हमारी एक हॉरर, लाइक अब तक की सबसे खतरनाक क्लाइंट हॉरर स्टोरी थी कि 30,000 रुपए के लिए क्लाइंट ने कोर्ट केस फाइल कर दिया हमारे पेरेंट्स को, और व्हाट लीगल नोटिस भेजी, मेरा अकाउंट फ्रीज करा दिया 4 महीने, केवल 30,000 रुपए के लिए. तेरी ऐसा क्यों करा उन्होंने एडवांस पेमेंट की थी उसने, काम अच्छा नहीं लगा, 1 महीना काम हम्म, किया, वापस करने के लिए बोल रहा है. हमके एडवांस पेमेंट वापस कब से होने लगी? ये वापस डिपॉजिट काम का तो मतलब किया वो है. ना पैसे तो उसके होते काम तो हैं किया, पसंद नहीं आया, काम करने तो के पैसे थे कह रहा है कि नहीं, तो तुमने वो स्कैम तेरी किया हमारे प्रॉब्लम है लिए. उसकी प्रॉब्लम हाँ, नहीं वही तो. बट अच्छा फिर इन द एंड आई हैव टू रिटर्न इट टू गेट माय अकाउंट ओपन. तो नुकसान oh बहुत हो man गया. that's a bummer what kind of a client was this anyway sorry let's not divulge and get into details that you don't want to get नहीं into नहीं, ये डिटेल अभी हम खुद यूट्यूब पे हम्म डालने वाले हैं अच्छे से, प्रॉपर है, तो बढ़िया आई विल सेंड बढ़िया द लिंक टू बढ़िया यू. करो करो प्लीज भेजिएगा सो क्या कहते हैं, हॉरर अभी एक स्टोरीज इंटरेस्टिंग चीज थी. परसिस्ट हम्म. हम्म इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक कोई एक हॉरर स्टोरी आप बताइए अपने अपने इंडस्ट्री की, यार मैं अपने नाम नहीं लाइफ ले की. सकता मेरे नाम नहीं, क्लाइंट्स कोई बहुत बड़े दिक्कत बड़े नहीं, हैं मैं नाम उनका नहीं नाम नहीं लेना. ले सकता हाँ, नाम यार नाम हर नहीं, तरह बस के लाइक क्लाइंट्स इफ होते यू हैं वांट टू शेयर, अगर ब्रीफ में. हाँ. यार ऐसे मजा सब बहुत हर लेवल पे किसी को नहीं आता तुम्हें तीस हम्म. हजार रुपए के लिए नहीं आया हमें 30 लाख रुपए में भी नहीं आता तो ये तो दिस हम्म. इज अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल दैट विल कंटिन्यू हम्म. but again you can't change this dynamic this will always exist because people believe in the idea of power and throwing and this and franchising you from your power कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ एग्जैक्टली. एंड ये हुआ है एक बार ही नहीं बहुत बार ही हुआ है हर लेवल पे हुआ है और मेरा एक मानना है कि एक टाइम के बाद एज आई सेड डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली तुम किसी की जान नहीं बचा रहे हो ये काम करके ठीक है ये किसी भी को है. अगर मेरी एनालॉजी ये है बहुत गंदी एनालॉजी है और मैं यूज करूंगा कि अगर किसी को टट्टी चाहिए और तुम उसको पूरा गुलदस्ता दे रहे हो क्यों दे रहे हो यार उसको टट्टी चाहिए उसको टट्टी दे दो तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने ये भी वाली है काम करो, आगे बढ़ो. there will be a better project at some other point maybe so हम्म. I don't fret over stuff like this होगा देखा जाएगा and you will find this is 30,000 rupees is a big number right now but at some point this will become a bigger number and there will be bigger troubles at hand but at the same time you will know how to deal with them and how to deal with this kind of a person also at the other end and deal with it amicably without getting into naming shaming कि भाई ये लो खम्बे से टकराओ नमस्ते करो आगे बढ़ो कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों में आई वाज सेइंग द अपॉर्चुनिटी हम्म. कॉस्ट इज टू हाई फॉर यू टू गेट डाउन टू दैट लेवल फॉर एनीवन किसी को टट्टी चाहिए उसको टट्टी दो और आगे बढ़ो यार कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों में घुस के you will ओके. find all kinds of people in every space every domain all you got to do is just keep your head up and keep moving on uh, I've dealt this same scenario with the biggest of corporations and it doesn't matter and it's a people's business right it's not the business that is doing that to you it's the people that are doing that to you the people have malintentions in these scenarios and cases their heart is not in the right place and all they can And there think are of is every kind of self-fulfillment people, and you not can the say. relationship Hmm. yeah yeah Mhm.
उनको बस अपना अपना वो दिख रहा है कि हम कैसे शाइन करेंगे इस ट्रांजैक्शन के अंदर, उसको ये नहीं दिख रहा है हम्म, कि ये रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो हम्म, तुम यहाँ पे, और ये तुम्हें कहाँ लेके जा सकता है। ये ये जब कोई क्लाइंट अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है ना, उसके लिए दिल खोल के काम करता है बंदा। हाँ ठीक है, कर देंगे, देखी हम्म, जाएगी। बट जब कोई yeah, क्लाइंट अड़ियल बनता है, जब कोई क्लाइंट वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना चाहता है, वो ब्रिज नहीं बनाना चाहता है, फिर तुम नहीं कहता ले भाई तेरे को ये लिख के बोला था कि यही देंगे तो यही मिलेगा, ये तेरी प्रॉब्लम है अब। ये हुआ आपके साथ बहुत बार? हाँ अब तो यार पता भी नहीं चलता कब हो जाता है कब निकल जाता है, अच्छा। सोचते नहीं इस बारे में इतना। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ हम्म, ग्रोइंग अप in this profession and having a thick skin. With time, you're just like, fuck it, doesn't matter. अच्छा। There will be many other prospects and projects where you can shine. This is not that हम्म, one. Again, you हम्म, treat your profession the way your profession treats you. ओके, You have to think of it like that. ओके, If your profession in that moment is treating you badly, you can't treat your profession with the same ओके, kind of goodness and kind-heartedness. You treat it with the same amount of shit that the profession is giving you, and that's the equalizer that you need in that situation. As I said, there will be other opportunities, right? That'll come your way. And you focus on them rather than worrying about, oh, what will happen if this doesn't work. It'll happen. क्या हो जाएगा? क्लाइंट भाग जाएगा, क्या होगा? पैसे नहीं मिलेंगे, पोर्टफोलियो का वो प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा जो तुम चाहते थे, कोई और बन जाएगा। ये भी है। इन द एंड यही हो जाता है कि like if we talk generally about life, life never goes as we plan it. So it also applies नहीं to any बन project or any client. कि prospect आया जब तो बड़ा यार, excitement हुआ कि हाँ भाई क्या कर लेंगे, and in the end it सर्जन्स turns की out इतनी सारी shit. सर्जरीज Yeah. बॉच हो जाती हैं, लॉयर्स केसेस हार जाते हम्म, हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो बुरे लॉयर हम्म, हैं कि बुरे सर्जन हैं। जस्ट द हम्म, केस वाज बैड, दैट्स इट, व्हाट कैन यू डू? yeah. So it's a profession at the end of the day. This is not your life. This is just हम्म, 1/3 of your life. yeah. Uh, if you coming back to the point, एक personal question है, Hmm. you being a designer for so long, was there anything from your childhood when you were not into professionally design and all that helped you be a better designer when you get into this professionally? हाँ, कोई चीज थी ऐसी? यार मेरे चाचा जो थे ना, वो उस टाइम पे डीजे थे जब Mm-hmm. डीजेस होते ही नहीं थे। मतलब डीजे एज अ Okay. प्रोफेशन I वाज़न्ट अ saw थिंग the नाउ। तो story. Yeah, yeah. चार डीजे Mm. चार डीजे बाहर सड़क पे बुलाऊंगा, डीजे चार लोग आ जाएंगे। Mm. This is back in the early 90s, and my exposure to the world happened because of him. He still is a very fashionable man. Um, uh, like his sensibilities, his exposure to the world helped me get access to things that otherwise people wouldn't have gotten around me. And that helped me. मतलब क्या जूता उस टाइम पे, मतलब अभी जैसे लोग वो जूते अब आज की डेट में दोबारा ट्रेंड में आ गए हैं, वो पहन रहे हैं, वो आज से 20 साल पहले मेरे चाचा पहनते थे, 20-25 साल पहले। घड़ियां ऐसी पहनते थे जो Mm. कि मतलब अब Mm. जाके लोगों ने दोबारा पहननी शुरू करी है, वो उस टाइम पे पहनते थे। सो दैट Right. फैशन सेंसिबिलिटीज ऑफ हिज, style, aesthetics, the kind of people that he was meeting, the kind of people that he was hanging out with, that uh, Mm. set some kind of a structure in my head. And then I was obsessed with NBA, basketball. Okay. मेरे को बास्केटबॉल देखना बहुत पसंद था, तो प्लेयर्स कैसे ड्रेसअप करते हैं, Mm. किस तरह के जूते पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह की घड़ियां पहनते हैं, कैसे बात करते हैं। हिप हॉप का बहुत Mm. बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो वो सब चीज़ों ने काफ़ी मेरे को इन्फ्लुएंस करा अर्ली ऑन इन माय Mm. लाइफ, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्ड मी फाइंड माय वॉइस आल्सो। Okay. Like I ask this question to every guest, और सबके like बहुत ही different answers आते हैं, and I'm very young to judge this, but still like I remember स्कूल में art competition होते थे पेंटिंग वेंटिंग के, तो कभी कभी लगता है कि it came from there, और या फिर मेरे पेरेंट्स like they are into government job now, but अपने टाइम में वो लोग लाइक पेंटिंग वगैरह करते थे, मम्मी पेंटिंग करती थी, क्लास पेंटिंग वगैरह, और पापा अभी भी लिखते हैं, लाइक दे राइट, एंड मम्मी भी लिखती है like कवि वाले चीजें, पोइट्री वगैरह। सो दे लाइक
पता नहीं कहाँ से क्रिएटिविटी, कैसे हमने ये चूज कर लिया। लाइक समटाइम्स आई आस्क, बहुत बहुत टिपिकल ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, बट स्टिल मी हम्म। चूजिंग दिस। मेरे पूरे शहर में एक भी डिजाइनर नहीं होगा, या होगा तो अच्छा। बहुत कम होगा। या आई कैन अच्छा। गारंटी दिस, हाँ। पूरे आजमगढ़ शहर हाँ। में एक भी डिजाइनर नहीं होगा। मे भी आसपास होंगे अच्छा। होंगे बट मतलब हाँ। हम नहीं जानते किसी को। ऐसा सीन है। हम्म। एंड इफ आई टेल हम्म। एवरीवन कि हाँ ये डिजाइनर कर, अच्छा हाँ पोस्टर बनाते हैं, वो दुकान का बैनर, क्या ही बोला जाए। यार वो तो अभी तक चलेगा। मेरे माँ बाप अभी तक, उनको लगता है मैं पोस्टर और बैनर ही बनाता हूँ, तो ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये चलता ही रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते तुम। हमारे घर वाले खुद पूछते हैं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मम्मी कल पूछ रही फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्री में तो नहीं कर रहे हो काम। मम्मी फ्री में ही कर रहे हैं मोस्टली। आ, कह सकते हैं तो हाँ, फ्रीलांसिंग से याद आया, डू यू थिंक बिग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं लाइक बड़े क्लाइंट्स, freelancers can work with them, or they have to have a part of an agency, or they have to have their own agency? क्या लगता है इसके यार, बारे में? there is a rhyme and reason that they go to agencies for this, and there are certain Okay. technicalities that are involved. और वो Mm-hmm. शुरू होती हैं पैसे से, खत्म होती हैं पैसे पे। Okay. I will give you an example. Bigger companies Mm-hmm. with big ticket sizes, bigger branding projects, they come at a higher ticket size, right? Which goes into lakhs and crores of rupees. Mm-hmm. When you're working with those kind of numbers, right? Deployment of capital is a big thing. Let's say I Mm-hmm. am asking Webhub's company to do corporate branding for me. Let's say this project costs 50 lakh rupees. Now I have to spare 50 lakhs to give to you for branding. That means I must be earning crores of rupees to give you 50 lakh rupees in the first place, right? Mm-hmm. Now Webhub is a company. Okay, Webhub is not an individual. We have to understand that Webhub has 15, 25, 30 people working with him in his company. So, and my payment terms with you as a corporate will be set in a way that you bill me today. Let's say you bill me for 30% of the invoice, 35% of the invoice. 30 कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा मेरे को। 15 लाख रुपए मेरे को आपको देने हैं, ठीक है? अब मैं 15 लाख रुपए आपको अभी दे सकता हूँ, मेरे पास है। बट क्योंकि मेरी जो रेवेन्यू टीम है, मेरी बिजनेस टीम है, मेरी अकाउंट्स टीम है, उन्होंने सिस्टम सेट कर रखे हैं कि जब इनवॉइस आएगा उसके 30 या 60 या 90 दिन में आपको पैसे मिलेंगे। उसका रीजन होता है क्योंकि मेरा कैपिटल जो है वो ऑलरेडी 10 जगह और डिप्लॉयड है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो पैसा नहीं है बैंक में, बट वो मुझे और किसी बड़ी कंटिजेंसी के लिए यूज करना पड़ सकता है, तो मैं वो 30 दिन तक अपना पैसा बचाऊंगा। बट आपकी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको 30 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने 15 लाख रुपए का बिल रेज करा, क्योंकि 15 लाख पे पहले आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? वो 2.5 पौने 3 लाख रुपए का जीएसटी पहले आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा बिफोर दैट 15 lakhs इवन हिट्स योर अकाउंट। सो फॉर मी टू चूज अ कंपनी दैट कैन डू दैट फॉर मी, आई नीड टू ट्रस्ट दैट कि इनकी इतनी क्रेडिट लाइन है। And that's why bigger branding projects require a certain level of organization to be involved. ये bare minimum है, ठीक है? उसके बाद होता है reliability and trust, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, गवर्नमेंट ने आपको एक चिट्ठा दिया हुआ है कि भैया ये तुम्हारा जीएसटी नंबर है, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये तुम इतना टैक्स भरते हो, तो वो उन सब चीजों को भी देखते हैं कि तुम्हारे पास ये सब कुछ कंप्लायंस है कि नहीं है, तुम कितना टैक्स भरते हो साल के अंदर, टू गेज ऑल ऑफ दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर तुम्हें गवर्नमेंट ने दिया है अप्रूवल कि हाँ तुम एग्जिस्ट करते हो और तुमने गवर्नमेंट को इतने टैक्सेस दिए हैं, जितना तुम बढ़ते रहोगे इस गेम के अंदर उतना ये और इंटेंसिफाई होता रहता है। कभी कभार जैसे गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर आपको दिखाना पड़ता है कि आपका 10 करोड़ का रेवेन्यू है साल का, तब आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, जिसके लिए भी आप पैसे दोगे समझ गए, कि हमें दे दो समझ एक गए। अंदर। तो एज आई सेड, इट स्टार्ट्स ऑफ विद मनी, इट एंड्स विद मनी, एंड दैट्स वेयर अ फ्रीलांसर कैन नॉट compete with a bigger organization.
It can be a part of a project with the bigger organization, but it cannot take on the sole responsibility of running such a big project. Okay, so there is a ceiling, there is a cap for freelancers to make, or even work Yes. on type of projects. Yeah. Yes, purely because of this. Okay, so like this might sound a very weird question, but what if someone wants to Hmm. stay as a freelancer for as long as he is happy? So like what would be a best path? Like ये थोड़ा सा personal question रहा है because I am in the dilemma of starting an agency or studio or staying Yeah. as a freelancer because अभी बहुत early है मेरे लिए. And so yeah, what would you like to say on this? यार वो पर्सनल चॉइस है। मैं Hmm. उसमें कोई मैं तो बोलता हूँ कि कंपनी ना ही बनाऊं, बहुत मत्था कच्ची का काम है, Okay. बहुत मत्था खराब होता है। रनिंग अ बिजनेस इज नॉट Hmm. इजी यार, बीइंग मतलब इतने सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना रोज सुबह उठ के कि यार ये Hmm. ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वो इट्स चीज तो वेरी है यार. कंज्यूमिंग। आपकी सेंस ऑफ सेल्फ खत्म हो जाती है बिकॉज फॉर यू व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज दैट you have to put food on the table for all of the people before you put anything on your own table. Hmm. And it's a big responsibility to have. And then organizational growth, you forget that you're a designer. Hmm. आपके struggles होते हैं कि पानी नहीं आया, आपके struggles होते हैं कि प्रिंटर Hmm. की इंक खत्म हो गई है आपके struggles होते हैं कि Hmm. ट्रिप पे जाना है, बुकिंग करवानी है लोगों की, आपके मतलब there are thousand other things beyond what you should be really Hmm. otherwise doing as a graphic designer Hmm. that come into play when you're running a Hmm. company. So it's not an easy job. Being an entrepreneur is not easy. Do- Being a Hmm. solopreneur is relatively easier. I'm not saying that's not Okay. easy. Okay. It is relatively easier than running a company. Hmm. And if you have the ability and the choice and the freedom and the means to be a solopreneur, I would say stick Hmm. to it if you can. Because you can, I know many friends who are doing extremely well as independent consultants working in the same Hmm. domain just because they're looking for themselves only, looking out for themselves only, not for multiple other people. Okay. And here, in a company setup, I have to look out for multiple other people first. समझ रहे हो? समझ गए. दैट इज इंटरेस्टिंग तो लाइक ये डिलेमा तो हमेशा रहता है और हमको लगता है कि आगे भी रहेगा. सो आई होप. हमेशा रहेगा यार, और वो ग्रास इज या ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जैसे मैंने बोला ना, वो तो हाँ. दूर के ढोल सुहावने। एंड व्हेन यू हैव योर ओन एजेंसी फिर लगेगा कि इसी पे मेरा फॉलो अप क्वेश्चन, डू यू मिस बीइंग जस्ट अ ग्राफिक डिजाइनर? So many times. But ओके. अभी I think अभी that stage has also come where I just don't enjoy design. I like looking at the larger picture. For me, getting a brief, understanding the brief, getting the right kind of team together, solving for the brief is more important than just design. I do miss design sometimes. Every now and then, I like getting my hands dirty. I'm like, चल हट, मैं करूँगा. पर वो बहुत रेयर हो गया है अब इतना नहीं होता है. अभी ओके. टाइम भी नहीं मिलता है वैसा काम करने का. पहले बहुत करते ओके. थे, अब तो नहीं कर पाते. डू यू स्टिल क्रिएट लाइक डिजाइन करते हैं अपने लिए चिल करके ऐसे टाइम पास में या फिर जस्ट टू नहीं क्रिएट अ यार, क्रिएटिव या नहीं करते? अभी नहीं. अभी अब कभी कभार जैसे मतलब कुछ सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अपना द रेगुलर टाइम्स है, उसके लिए कभी कभार एक पेज मैं बनाऊंगा, मेरा मन है. हाँ वही चीज है. तो तब मेरा मेरा बैट मेरी बॉल आ जाता है बीच में, बट अदरवाइज नहीं होता. अच्छा. दैट इज इंटरेस्टिंग. कूल. सो लाइक हाँ. बहुत ही अच्छा लगा. लाइक दिस वाज लाइक प्योरेस्ट लाइक रॉएस्ट कन्वर्सेशन दैट आई एवर हैड इस पॉडकास्ट पे, यू कैन से. हाँ. और लाइक आई कैन लाइक अभी हम लोग और मेरे पास इतनी चीजें हैं बात करने को, उनकी बात करते रह सकते हैं बट रिस्पेक्टिंग बोथ ऑफ आवर टाइम. बिफोर वी वाइंड अप, वन पीस ऑफ एडवाइस लाइक डिमोटिवेट भी करे चलेगा बट या वन गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द ग्राफिक डिजाइनर्स इन इंडिया, स्पेसिफिकली graphic designers.
Yeah. Yeah, I don't have one specific piece of advice. All I want to say is that चलेगा, तीन चार this बात whole चलेगा. conundrum, this conundrum of Okay. AI bullshit that's happening right now. Hmm. पहली बात Hmm. तो AI तुम्हें रिप्लेस नहीं कर Hmm. सकता अगर तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड है और तुम ये Hmm. लॉन्ग टर्म करना चाहते हो. AI is just a tool. Hmm. It will help you become a better professional in your Hmm. domain, but it's not going to replace you. So anybody who's telling you that otherwise, please don't Hmm. take that seriously at all. Just update yourself with what's happening out there. That's about it. Secondly, stop Hmm. creating work for others, create work for yourself. It's very important as a designer. जो मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि जब तक Hmm. अपना घड़ा नहीं भरोगे ना, किसी और का नहीं भर सकते हो. जब मैंने भी अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू करा था ना, मैं अपने लिए बहुत चीजें Hmm. करता था apart Hmm. from doing things for other people, for that self fulfillment, to feel like I'm doing Hmm. something nice. Because with commercial work there is an easy it's very easy to get swayed by commercial work and just keep doing it forever, but it's important to focus on Hmm. personal projects, personal development, and uh, Hmm. just enjoying this journey as a graphic designer. So I think at least for the first 5 to 7 years of your career, focus on doing some self-published projects, self-driven projects. Can be anything, doesn't matter. The format doesn't matter. That's very important. Thirdly, Hmm. stop giving a fuck about Instagram, man. Nobody gives a shit. Like, honestly, nobody gives a shit. Like, people Bye. die for engagement, die for likes. They want that instant gratification. कि Hmm. मेरा काम देखो कोई, सब भूल जाएंगे. किस दिन Instagram बंद हो गया फिर क्या करोगे? Hmm. Oh, कुछ नहीं कर सकते ना. क्या बात है. Yeah. So There are this top I'm not design saying creators in don't put India out ना, work. जो famous है Instagram पे. Sorry to cut. Yeah. अरे Instagram पे तो यार fame is a very relative thing. अभी है कल नहीं है. वो भी है. ठीक है, सबका सबका दौर आता है, सबका टाइम आता है और वो फिर चला भी जाता है. Hmm. आपकी प्रैक्टिस नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, आपका काम नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, एंड दैट्स व्हाट विल गेट यू थ्रू. आई डोंट थिंक Hmm. looking for that instant gratification and that instant fame is something that's killing your pursuit of design, good Hmm. design, good work. If you're just creating for likes, then Hmm. you're not really truly serving the purpose that you should have as a graphic designer. That's it. वही चीज That's है. all I have to say. Cool. So, yeah, that was the episode 13 of the Virus Show, and I hope you all got a lot to learn. And yeah, thank you again, Anand, for being the guest here. So it was a pleasure. Thanks for having me, man. You have a good day. Fantastic speaking to you. Yeah, thank you.